So we will move on to the main topic of pharmacokinetics. So pharmacokinetic models includes compartment model, non-compartment model, perfusion or physiologic model. In that, the main point is the compartment model. Compartment model, we have discussed the basics about the compartment model, where the model is assumed that the body is divided into different compartments. If it is body is will be considered to be a single unit, then that is one compartment. Two units, then two compartment, and more than two, it is multi-compartment model. So what we have to study here, it is this is the most important, and usually students find more complex in this topic. It's not actually complex. You have to know all the basics and the facts about the pharmacokinetics. So mainly pharmacokinetics involves the study of determination of drug concentration in the body in various tissues, also in plasma, and also in various organs or the body fluids. So how much drug concentration is present with respect to time have to be determined. So we have to determine some pharmacokinetic parameters. The basic parameters behind this pharmacokinetics is volume of distribution and elimination rate constant, and from that we can derive some more pharmacokinetic parameters like half-life can be derived. Then we can derive what else, the initial drug concentration, AUC can be derived, clearance can be derived from this pharmacokinetic parameters. So usually when we have to determine the drug concentration using the compartment models, we have three routes of drug administration according to pharmacokinetics. One is IV route, another is EV route. IV means intravascular, whereas EV means extravascular. This is the classification of route of administration. So route of administration we have so many, you must be knowing there are so many routes of administration. आप लोगों को तो पता होगा ना, बहुत सारा route of drug administration होता है. The basic or general being the oral route. Apart from that, we have topical route, nasal route, ophthalmic route, topical route, rectal route, vaginal route. So there are so many routes are there, and parenteral routes. In parenteral, intramuscular, subcutaneous, intravenous, these are all the route of drug administration. But according to pharmacokinetics, we have just two route of drug administration. One is intravascular and another is extravascular. Why it is just the two routes means because intravascular means we are administering drug into the blood directly. So what is pharmacokinetics? It is the study of ADME, where intravascular route, the drug is administered directly into the blood. Absorption is the movement of drug from site of administration to the blood. But in intravascular route, we are directly administering into the blood. So this step is bypassed in intravascular route. So according to pharmacokinetics, one is the drug route which is directly administered in the blood. Only it is having three different process steps, that is distribution, metabolism and excretion. Whereas extravascular means extra means outside. Vascular means blood. Similarly, intra means within. Vascular means blood. So we are administering drug within the blood, inside the blood. So no need of any step of absorption. So the absorption step is bypassed. Straight away, the drug is in blood and the drug gets distributed, metabolized and excreted from the body. Whereas when the drug is administered outside the blood, the drug first have to absorb, then distribute, then metabolize and excrete. So according to pharmacokinetics, only two routes of drug administration are they are intravascular and extravascular. Intravascular includes the route which are the administering route which are administered directly into the blood. Extravascular means it may include oral, ocular, topical, all other routes except the IV routes. Even the intramuscular, subcutaneous of the parenteral route included in the extravascular. In intramuscular, we are administering the drug into the muscles. From muscles, the drug have to distribute to the blood, then from blood to different tissues and organs.
So we have two routes, intravascular and extravascular. So whenever we study any compartment models, we have to study three types of pharmacokinetics. One is when the drug is administered through IV injection, that is intravenous injection, or this is also known as IV bolus injection. That means in a single dose drug is administered in the intravenous dose, that is known as intravenous injection or intravenous bolus dose. मतलब एक ही बार में ड्रग को वेन के थ्रू से एडमिनिस्टर करना, सिंगल डोज में एक साथ वेन पे एडमिनिस्टर कर लिया तो उस डोज को क्या बोलते हैं, आईवी इंजेक्शन और आईवी बोलस बोलते हैं. दूसरा एक रूट होता है आईवी में ही, इट इज नोन एज आईवी इन्फ्यूजन. आईवी इन्फ्यूजन जनरली क्यों देना पड़ता है, टू मेंटेन द कांस्टेंट रेट ऑफ ड्रग इन ब्लड. ड्रग का कांस्टेंट रेट ब्लड पे अचीव करने के लिए वी जस्ट एडमिनिस्टर आईवी इन्फ्यूजन. आईवी इन्फ्यूजन इट इज दैट यू एडमिनिस्टर द ड्रग थ्रू द ड्रिप्स. ड्रिप्स इन्फ्यूजन चलता रहता है, ड्रिप्स चढ़ता रहता है, जैसे आपको ग्लूकोज चढ़ाते हैं या आपका सलाइन चढ़ाते हैं, उस सलाइन बॉटल में ही आप ड्रग को या एडमिनिस्टर कर देते हैं. जैसे जैसे एक एक ड्रॉप वेन के थ्रू से आपके अंदर जा रहा है वो ड्रग भी डाइल्यूट होके धीरे 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 अंदर जाता है. यहाँ पे क्या होता है, ड्रग कांस्टेंट रेट पे अचीव हो जाता है, स्टेडी स्टेट मेंटेन करके धीरे धीरे कांस्टेंट रेट पे ड्रग एडमिनिस्टर होता है. उसको क्या बोलते हैं, आईवी इन्फ्यूजन. ये कब देते हैं, जब आपको बहुत लंबा टाइम तक आपका कंटिन्यूअस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होगा, कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन देते हैं. मतलब तुरंत आपका एक्शन चाहिए तो आईवी इंजेक्शन या आईवी बोलस इंजेक्शन देते हैं, पर कंटिन्यूअसली आपका एक्शन चाहिए होगा ड्रग का तो कंटिन्यूअसली आईवी इन्फ्यूजन देते हैं. एंड द थर्ड रूट इज एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट. एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट इंक्लूड्स ओरल रूट या कोई भी रूट, इंट्रावेनस इंजेक्शन इन्फ्यूजन छोड़ के बाकी सब रूट किस में आएगा, एक्स्ट्रावेस्कुलर में आएगा. बिकॉज ऑल द रूट्स आर एडमिनिस्टर्ड आउटसाइड द ब्लड. पहले ब्लड बाहर चला, एडमिनिस्टर किए, वहां साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाना है, वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट होना है. इन दोनों केसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्टेप नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन होगा. इस केस में एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन होगा. सो हम फार्माकोकाइनेटिक्स में आप लोग देखे होंगे, बुक्स में पढ़े होंगे. सो जनरली व्हेन वी स्टडी द फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स, इन तीन रूट पे पढ़ना चाहिए, दैट इज आईवी इंजेक्शन और आईवी बोलस इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूजन, एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट. वेयरएज इनमें भी इंडिविजुअली हम दो टाइप में ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी में डिटरमाइन कर सकते हैं. पहले ही बोले थे फार्माकोकाइनेटिक्स क्यों स्टडी करते हैं, टू डिटरमाइन द ड्रग कंसंट्रेशन इन द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टू स्टडी द रेट, है ना. रेट मतलब कितने ड्रग कंसंट्रेशन टाइम के हिसाब से हर जगह पे रहता है, उसको डिटरमाइन करना होगा. सो बॉडी में ड्रग कंसंट्रेशन कितना प्रेजेंट है टाइम के हिसाब से, उसको डिटरमाइन करने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं. वी एडमिनिस्टर द ड्रग, विड्रॉ द ब्लड, ब्लड निकाल के ब्लड के अंदर कितना ड्रग पहुंचा है वो निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट. दूसरा क्या कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड आउट थ्रू दी यूरिन. यूरिन के थ्रू से ही ड्रग मेनली एक्सक्रीट होता है, इसलिए यूरिन को कलेक्ट करके यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट से भी हम ड्रग कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं. कितने बॉडी में ड्रग है उसके हिसाब से आपका एक्सक्रीशन होगा, उसी को भी यूज करके हम ड्रग कंसंट्रेशन. सो ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी में जितना है जिस टाइम पे, to determine that you can determine by two methods, either from plasma, that is by withdrawing blood, or by withdrawing urine, urinary excretion rate of drug. इन दोनों से हम ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी में कितना प्रेजेंट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं. सो जब भी हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, either you have to study single dose, multiple dose, अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा, वन कंपार्टमेंट मॉडल, मल्टी कंपार्टमेंट मॉडल अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा. उसमें भी आपको तीन रूट में पढ़ना पड़ेगा, दैट इज आईवी बोलस इंजेक्शन, आईवी इन्फ्यूजन, एक्स्ट्रावेस्कुलर. और उसमें भी आपको दो तरीके से ड्रग कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, वन इज प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट. आई विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन. दस वन कंपार्टमेंट मॉडल आज स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें वन बाय वन रूट स्टार्ट करेंगे. उसमें भी आपको
एक पहले प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, फिर यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट। ऐसे शुरुआत में आपको धीरे धीरे चलेंगे, उसके बाद आपको बेसिक समझ में आने के बाद थोड़ा फास्ट कर लेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इज दैट वन कंपार्टमेंट मॉडल में आईवी बोलस इंजेक्शन रूट पे ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नाउ you are determining the drug concentration by withdrawing plasma. So plasma drug concentration measurement से हम pharmacokinetic parameter determine करना होगा. Now how to determine the pharmacokinetic parameter from this method? First of all you should know कैसे आपको ड्रग कंसंट्रेशन चेंजेस आता है, रीजन क्या है। जैसे हम आईवी बोलस इंजेक्शन पहले बोल दिए, आईवी में सिंगल डोज पे एक ही साथ पूरे ड्रग को एडमिनिस्टर कर दिए, एक इंजेक्शन लिए पूरा वेन पे एक साथ आप एडमिनिस्टर कर दिए पूरा। अब क्या होगा, 100% ऑफ द ड्रग विल बी प्रेजेंट इन द ब्लड। पूरा 100% दे दिए, ब्लड में दिए तो ब्लड में पूरे 0 टाइम पे कितना ड्रग प्रेजेंट होगा, टाइम और कंसंट्रेशन देखेंगे तो 0 टाइम पे मैक्सिमम ड्रग दैट इज 100% ड्रग। और टाइम कम होते होते 100% तो एक बार एडमिनिस्टर कर लिए, अब टाइम बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आपका ड्रग कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फैशन। एक्सपोनेंशियल फैशन में इसलिए डिक्रीज होता है, वन कंपार्टमेंट मॉडल का असम्पशन पढ़ाते वक्त ही पढ़ाए थे। वन कंपार्टमेंट मॉडल फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर, एलिमिनेशन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एलिमिनेशन मतलब बॉडी से एलिमिनेट होने के जो रेट है, किस काइनेटिक्स को फॉलो करेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वो डिक्रीज होगा। सो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ जो है एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा। सो आपको डिक्रीज जो है एक्सपोनेंशियल कर्व में मिल रहा है, ऊपर से नीचे कर्व बना रखे हैं। व्हाई, बिकॉज द कर्व इज स्टार्टिंग फ्रॉम द अबव टू द बिलो, डिक्रीजिंग वे में एक्सपोनेंशियल curve is there. Why? Because the drug concentration decreased with respect to time in IV bolus. IV में 100% तुरंत पहुंच जाएगा, and as the time passes, the drug concentration decreases with time. So इसमें क्यों डिक्रीज हुआ, आपके बॉडी में डिक्रीज होने का रीजन क्या है, बिकॉज ड्रग तो एडमिनिस्टर कर लिए, 100% ड्रग है, अब वहां ब्लड में ही रहेगा क्या, 100% पूरा रहता है क्या, नहीं। दिस विल मूव टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब लिवर में जाएगा मेटाबोलाइज होगा, किडनी में जाएगा एक्सक्रीट होगा। सो ये दो रीजन की वजह से ब्लड में ड्रग कंसंट्रेशन कम हो रहा है। सो ब्लड ड्रग कंसंट्रेशन डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन। सो आपका जो चेंज किसकी वजह से हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन होने की वजह से हो रहा है। सो द रेट ऑफ change of drug in the body is proportional or dependent on the amount of drug that is present in the body. बॉडी में कितने ड्रग प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपका रेट पे ड्रग का डिक्रीज होगा। ड्रग डिक्रीज होने का रीजन है कितने अमाउंट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और एलिमिनेट हो रहा है। इसको फर्स्ट लाइन, आफ्टर आईवी बोलस इंजेक्शन द रेट ऑफ चेंज इन ड्रग कंसंट्रेशन बॉडी में चेंज होने का जो है किसकी वजह से हो रहा है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी। कितने अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपको रेट ऑफ चेंजेस हो सकता है। सो रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये जो अमाउंट जो है टाइम के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, इसलिए आपको माइनस लिखना है। फर्स्ट क्या बोले थे, द रेट ऑफ चेंज in drug concentration in body is dependent on किससे, amount of drug that is present in the body। उसको इक्वेशन में लिखना है तो the rate of amount of drug, तो amount के लिए x लिखता है, rate के लिए d upon dt। rate मतलब with respect to time, टाइम के हिसाब से, टाइम को चेंज, d किसके लिए लिखता है, चेंज के लिए लिखता है। टाइम चेंज होते वक्त कितना अमाउंट पे चेंज होता है, इसको कहता है रेट। सो द रेट ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज द ड्रग जो है कम होते जाएगा टाइम के साथ से। सो माइनस dx अपॉन dt डिपेंडेंट ऑन, उसके लिए प्रोपोर्शनल, किससे डिपेंडेंट ऑन, अमाउंट ऑफ ड्रग। x is the amount of drug that is present in the body in time t। एक टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट होता है उससे डिपेंडेंट होता है कितना रेट पे आपका ड्रग का कंसंट्रेशन या अमाउंट टाइम के हिसाब से चेंजेस होना। सो द रेट
of drug amount present in the body is dependent on the amount of drug that is present in the body. इक्वेशन में रेट के लिए माइनस dx अपॉन dt माइनस फॉर डिक्रीजिंग इन द ड्रग अमाउंट इन द बॉडी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, प्रोपोर्शनल डिपेंडेंट के लिए अमाउंट ऑफ ड्रग के लिए x. नाउ जस्ट एक्सचेंज दिस dx. यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है, वन इज x एंड अदर इज t. x क्या होता है? x इज द अमाउंट ऑफ ड्रग. अमाउंट ऑफ ड्रग कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? चेंज होता है टाइम के हिसाब से. सो x इज वेरिएबल. टाइम चेंज होता है कि कांस्टेंट होता है? चेंज होता है. सो दैट इज आल्सो वेरिएबल. ऑलवेज व्हेनेवर यू नीड टू इंटीग्रेट मींस दोनों वेरिएबल्स को एक साइड रख के इंटीग्रेट नहीं करना है, अलग अलग वेरिएबल को अलग अलग साइड्स करना होगा. यहाँ पे दो वेरिएबल क्या क्या है? अमाउंट ऑफ ड्रग, टाइम. अमाउंट है x, टाइम है t. अब x को एक साइड, t को एक साइड रखना है. सो अमाउंट के लिए dx अपॉन ये x हो गया x, इसको इक्वेट भी कर देंगे तो k इंटू एक्स आएगा. सो dx अपॉन x इज इक्वल टू, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस इंटू k इंटू ये dt इधर चला गया तो dt. तो x का टर्म इधर आ गया, t का टर्म इधर आ गया, दो वेरिएबल दोनों साइड आ गया. सो टू वेरिएबल्स इज सेपरेटेड इन टू डिफरेंट साइड्स. X is one variable, it has been separated in left hand side. T is another variable, has been separated to the right hand side of the equation. Now, to determine X, we need to determine कितने amount of drug with respect to time. What is the amount of drug at time T? To determine that, you need to integrate. कभी भी dx को integrate करेंगे, differentiation को integrate करेंगे तो x मिलेगा. So, integrate this dx upon x and integrate k dt को ही integrate करना है. When you integrate the constant, again the value will be constant. That's why I am keeping outside and integrate dt. Now apply the limit from time 0 to time t. Time कहाँ से? 0 टाइम से, इनिशियल टाइम से टाइम t तक. तो 0 से t तक इंटीग्रेट करना होगा. तो 0 टाइम पे इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पे अमाउंट का x नॉट होगा. 0 टाइम का अमाउंट x नॉट, t का अमाउंट जो है xt होगा. सो द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज प्रेजेंट एट टाइम 0 is x naught, whereas the amount of drug that is present at time t is xt. xt क्या है? amount of drug at time t. x naught क्या है? initial drug amount. initial drug amount मतलब कितना डोज दिए हैं. तो x naught क्या होता है? it is the IV डोज. पहले बाहर जो कितने अमाउंट ड्रग बॉडी के अंदर दिए हैं, 0 टाइम पे उतना ही दिए, उसको क्या बोलते हैं? डोज, IV डोज बोलता है. सो x naught को IV डोज बोलता है. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा? नेचुरल लॉग ऑफ x मिलेगा. सो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? नेचुरल लॉग ऑफ x. नाउ आई वेंट अप्लाइड द लिमिट, तो लिमिट भी अप्लाई करना होगा. माइनस k इंटू dt को इंटीग्रेट करते हैं तो वी विल गेट t. तो t बिटवीन द लिमिट 0 to t. नाउ यू हैव टू अप्लाई द लिमिट. लिमिट अप्लाई करना होगा. लिमिट अप्लाई करने का रूल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये x में अपर लिमिट का वैल्यू डालना होगा माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू डालना होगा. मतलब x को पहले xt डालना है, फिर x को x नॉट डालना है. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो पहले यहाँ क्या डालेंगे? नेचुरल लॉग ऑफ x के वैल्यू अपर लिमिट डालो xt माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह लोअर लिमिट डालो x नॉट माइनस k इंटू फर्स्ट ऑफ ऑल t की जगह अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट 0. तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ xt इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो नेचुरल लॉग ऑफ x नॉट माइनस k इंटू t. सो जनरली वी डोंट यूज नेचुरल लॉग, वी यूज कॉमन लॉग. नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग का क्या आपका रिलेशन है? तो नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना होगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2.303. तो ये क्या हो जाएगा? 2.303 इंटू लॉग ऑफ xt इज इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ x नॉट माइनस kt. सो ज्यादा 2.303 है. नाउ डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय 2.303. तो क्या होगा? इस तरफ 2.303 से डिवाइड करना होगा, इसको भी 2.303 से, इसको भी 2.303 से डिवाइड करना होगा. सो 2.303 कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या रहा है? लॉग ऑफ xt इज इक्वल टू लॉग x नॉट माइनस kt अपॉन 2.303.
2.303. दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन भी ऐसा ही होता है, बट दिस इज अमाउंट. बट प्लाज्मा हम बॉडी से ब्लड निकाल के उसमें कंसंट्रेशन निकालते हैं, तो आपको अमाउंट को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना होगा. सो V इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी. तो x को कैसे लिख सकते हैं? V इंटू सी लिख सकते हैं. तो x को कैसे लिख सकते हैं? V इंटू सी. मतलब इसको V इंटू सी टी, इसको V इंटू सी नॉट. तो V दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहेगा? log सी टी इज इक्वल टू log सी नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303. सो ये इक्वेशन यूज करेंगे. सो इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. इसको देखो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. देखो ये जो log सी टी y एक्सिस है, ये आपको c होगा, ये x है, माइनस k अपॉन 2.303 ये m. अब इसको यूज करके आप ग्राफ बना लो. x एक्सिस में क्या लेना है? टाइम t लेना है. y एक्सिस में क्या लेना होगा? या तो आप डायरेक्टली log ct ले सकते हो, और अदरवाइज यूज सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट. सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट मतलब एक एक्सिस y एक्सिस आपको लॉग स्केल नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको लॉग में प्लॉट करने की जरूरत नहीं, सीधे आपका लॉग स्केल होगा. सो व्हेन यू प्लॉट सेमी लॉगरिथमिक प्लॉट ऑफ ct versus t, you will get a straight line whose slope will be minus k upon 2.303. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिए. अब पहले ऐसे होना चाहिए. इस इक्वेशन क्या होगा? सी टी इज इक्वल टू, इसका जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, सी टी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी. उसके हिसाब से आपको कर्व मिलेगा. बट व्हेन यू कन्वर्ट दैट एक्सपोनेंशियल इक्वेशन इनटू लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो log सी टी इज इक्वल टू log सी नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303 मिलेगा. तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उसका इंटरसेप्ट से सी नॉट मिलता है. वेर सी नॉट क्या होता है? इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन होगा. इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन होता है. Now you have to determine some pharmacokinetic parameters. From slope you can determine K, and from intercept you can determine C naught. इतना ही डेरिवेशन सिर्फ नहीं करना है, यू हैव टू डिटरमाइन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. दो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर यहाँ निकल गया, के एंड इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन. आप एडमिनिस्टर करते ही तुरंत ब्लड में देखेंगे तो कितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगा, दैट इज सी नॉट. तो सी नॉट मिल गया और आपको के मिल गया. इन सब यूज करके फर्स्ट आपको क्या मिला? सी नॉट. सेकंड आपको मिला है के, ये इंटरसेप्ट से मिला है, ये स्लोप से मिला है. और तीसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ लाइफ. हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए क्या होता है? 0.693 अपॉन के. तो के यहाँ निकल गया, 0.693 से डिवाइड कर लो तो मिल जाएगा के. और दूसरा क्या निकाल सकते हैं? we can determine volume of distribution. Volume of distribution is x upon c. अब x naught हमारे पास है which is IV dose, और initial drug concentration intercept से ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा volume of distribution. उसका यूनिट है ml. Then you can also determine the clearance. Systemic clearance निकाल सकते हैं which can be determined as k into v. Elimination rate constant और volume of distribution को multiply करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिस्टमिक क्लियरेंस मिल जाएगा ब्लड में से. और लास्टली यू कैन डिटरमाइन AUC. AUC कैसे निकाल सकते हैं? इंटीग्रेशन मेथड से निकाल सकते हैं. AUC पहले ही बोले थे, इंटीग्रेशन 0 to t c dt. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो c नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस के टी. यही है ना c, तो c नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल टू द पावर. तो इसको c नॉट को करेंगे तो कांस्टेंट ही है, इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन सेम आएगा. e टू द पावर माइनस के टी को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर माइनस के टी अपॉन पावर में है वो आपका साइन के साथ आएगा, और आपका लिमिट डालना होगा. पहले अपर लिमिट में इंफिनिटी डालेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट में 0 डालेंगे. e टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0 और e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. तो क्या होगा? ये कैंसिल होके AUC विल बी इक्वल टू C नॉट रहेगा और नीचे K रहेगा. सो C नॉट अपॉन K इज AUC. So these all you have to determine and show. मतलब IV इंजेक्शन का करने के बाद ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स भी निकाल के दिखाना होगा. C नॉट आपका ग्राफ में से इंटरसेप्ट से मिल जा रहा है, K स्लोप ग्राफ से मिल रहा है. K यूज करके हाफ लाइफ निकाल सकते हैं 0.693 से डिवाइड करके, और VD
सी नॉट है इंटरसेप्ट, एक्स नॉट है डोज, दोनों को, ये है आईवी डोज और ये है आपका इनिशियल ड्रग कंसंट्रेशन। और क्लियरेंस के पी निकाल दिए, बी डी निकाल दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्लियरेंस मिल जाएगा। ये यू सी यू नो ऑलरेडी इंटीग्रेशन मेथड से सी डी टी से कर सकते हैं। सी क्या है, सी नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी, और सी नॉट कांस्टेंट है तो वही आएगा, इंटीग्रेट करेंगे ई टू द पावर माइनस के टी को करने से ई टू द पावर माइनस के टी तो आएगा, और पावर में जो भी है कांस्टेंट वो नीचे आएगा साइन के साथ। पावर में कौन सा कांस्टेंट है, के साइन एस माइनस, सो माइनस के डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो जीरो इन्फिनिटी डालना है। पहले अपर लिमिट में ई टू द पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर जीरो हो जाएगा, ई टू द पावर जीरो इज वन, ई टू द पावर इन्फिनिटी इज जीरो, तो आपको क्या बचा रहेगा, ये साइन भी कैंसिल हो जाता है तो सी नॉट अपॉन के ई बचा रहेगा, तो ये यू सी इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन के। इतने तक आपको आईवी इंजेक्शन, आईवी बोलस इंजेक्शन फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डेरिवेशन में एक्सप्लेन करना होगा यूजिंग प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। In my next video, we will discuss about the determination of pharmacokinetic parameters using urinary excretion rate. One compartment model ही है, IV route ही है, IV bolus route ही है, but using urinary excretion rate ये parameters को कैसे निकालेंगे, elimination rate constant कैसे निकालेंगे, that we will discuss in next video. Thank you.